محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج تصحیح کے ساتھ ساتھ ایک خاندان کے تمام ووٹرز کے ناموں کو ایک ہی بوتھ پر درج کریں، ضلع کلکٹر کی ہدایت. غیر سرکاری مشکوک افراد کے گروپ کی ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کے تعلق عوام سے پوچھ تاچھ. امام قائدین نے دی پولیس و میونسپل کمشنر کو اطلاع، مکمل تحقیقات و جانچ کا مطالبہ. کمشنر آف پولیس نظام آباد کی حیثیت سے ستیہ نارائنا نے لیا عہدے کا جائزہ، دی گئی سلامی. امن و ضبط و شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس تیار، سی پی نظام آباد. اب خبریں تفصیل سے. ووٹر لسٹوں کی تیاری میں کوئی غلطی نہ ہونے ایک ہی خاندان کے افراد کے نام الگ بوتھوں سے ایک بوتھ میں لائے. ووٹرز کی درخواستوں کو تفصیلی جانکاری کے ساتھ لسٹ میں شامل کریں، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی کا عہدیداروں کو ہدایت. ایک خاندان کے افراد کے ناموں کا ایک ہی پولنگ بوتھ میں اندراج کرنے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا ووٹر لسٹ کی تیاری کرنے والے عہدیداروں کو مشورہ دیا. بتایا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کا اندراج، ناموں کی تصحیح کے لیے بوتھس میں خصوصی کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے پولنگ بوتھ کا اچانک معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے آرمور RDO ونود کمار کے ہمراہ آرمور ٹاؤن کے ضلع پریشد بوائز ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول، اپر پرائمری اسکول، بالکنڈا منڈل کے سری رامپور کے UPS اسکول کے پولنگ بوتھ کا معائنہ کیا. ووٹر لسٹ کی تیاری، ناموں کا اندراج، ناموں کی تصحیح کو لے کر رجسٹروں کی جانچ کے بعد تمام تفصیلات کی معلومات حاصل کی اور گھر گھر پہنچ کر 18 سال مکمل ہونے والوں کی تفصیلات کو لے کر نام کا اندراج کرنے کے لیے BLS کو ہدایت دی. ایک ہی خاندان والے کے الگ الگ بوتھ میں نام ہونے پر انہیں ایک بوتھ میں شامل کرنے کی ہدایت دی. خصوصی کیمپوں میں آئے ووٹر درخواستوں کی بہتر جانچ کرتے ہوئے BLO ایپ کے ذریعے آن لائن اپلوڈ کرنے کی بات بتائی. ووٹر لسٹ میں کوئی بھی غلطی نہ ہونے کے لیے خصوصی دھیان دینے کا انتباہ دیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ آرمور، بالکنڈا تحصیلدار، بوتھ لیول سپروائزرز، دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. 20 تا 25 افراد پر مشتمل ایک گروپ جس میں چند مرد اور زیادہ خواتین شامل تھے اپنے ہاتھوں میں مختلف اسمبلی حلقے جات کی ووٹر لسٹ لیے مالاپلی ضلع اسکول پہنچے اور عوام سے کچھ معلومات اکٹھا کرتے نظر آئے، جو کہ کافی مشکوک تھا. امام کارپوریٹرز نے وہاں پہنچ کر مشکوک اشخاص سے بات واضح نہ کرنے پر میونسپل کمشنر، جو کہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر بھی ہے، کو اطلاع دی. 2 مرد ایک خاتون کو پولیس نے حراست میں لے لیا. ماباقی فرار ہو گئے. کس مقصد سے غیر سرکاری افراد ووٹر لسٹ پر معلومات حاصل کر رہے تھے، اس کی مکمل جانچ کا امام قائدین نے مطالبہ کیا. کیا کوئی بڑی سازش ہے؟ اہم سوال. مالاپلی پیلا اسکول جو ڈویژن 53، 29، 55 کا پولنگ بوتھ بھی ہے، جہاں ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج و تصحیح کے کام جاری ہے. آج دوپہر کے وقت 20 تا 25 افراد پر مشتمل گروپ جس میں زیادہ تر خواتین شامل تھی پیلا اسکول پہنچ گئے اور اس گروپ کے ہاتھوں میں نظام آباد اربن کے علاوہ دیگر اسمبلی حلقے جات کی ووٹر لسٹ اور کافی پرانی ووٹر لسٹ موجود تھی. عوام سے معلومات اکٹھا کرنے لگے، جو کہ کافی مشکوک تھا. عوام نے فوراً اس کی اطلاع امام قائدین کو دی. نظام آباد امام انچارج شکیل احمد فاضل، کارپوریٹرز ماجد صدیقی،
मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रफी, अफसर बेग, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम वो दीगर वहां पहुंच गए और किस ताल्लुक से मालूमात हासिल की जा रही और किस महकमे से ताल्लुक है सवाल पूछने पर ग्रुप के अफराद ने खुद को प्राइवेट एजेंसी के अफराद बताया और शुबा पैदा करने वाले गैर मुतमईन जवाब देने पर इमाम हाइदीन ने फौरन म्यूनिसिपल कमिश्नर जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर भी को इत्तला दी और फिर पुलिस को तलब किया। पुलिस के आने पर 2 मर्द एक खातून पुलिस के हाथ लगे, माँ बाप भी वहाँ से निकल गए। इमाम हाइदी ने मुकम्मल जांच करने और असलियत का पता चलाने का मुतालबा किया। ये कौन लोग थे और किस मकसद से मालूमात इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज वो तस्दीक सरकारी महकमे की जिम्मेदारी है। फिर प्राइवेट एजेंसी को इसकी क्या जरूरत महसूस हुई? कोई सर्वे भी हो तो पोलिंग बूथ के बजाय अवामी मकामात पर अवाम की राय से सर्वे रिपोर्ट दी जाए। क्या ये कोई बड़ी साजिश है? इसका पता लगाया जाना जरूरी है। आज जो पीला स्कूल से मशहूर जहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है, जहाँ का यहाँ के जो डिवीज़न्स है, डिवीज़न नंबर 53, 55 और 29 ये पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर अटैचमेंट होते हैं। तो पिछले 2 हफ्ते से ये एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, जिसके 18 ईयर्स पार के लिए फॉर्म 6 और चेंज ऑफ वोटर्स के लिए फॉर्म 8 के लिए इसमें तमाम ही BLO अपॉइंट किया हुआ था। तो BLO अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे थे और साथ ही साथ हुसन MIM के पोलिंग एजेंट्स भी उनका भरपूर साथ देते हुए काम कर रहे थे। आज इत्तेफाक से जैसा ही मुझे मालूम हुआ, हमारे एरिया कारपोरेटर नसीर और रफ़ी और माजी सिद्दीकी फ़ोन करके बोले, तो पहले ही बोला कि वो एसोस जो है उनको बुलाकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही बोल के मालूम हुआ। तो पता चला कि यहाँ पर कोई प्राइवेट लोग, एक 25 आदमियों पे मुश्तमिल एक टीम जो अदर कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर लिस्ट ला के अपने तरीके से काम कर रही थी। तो हम फौरी ERO यहाँ के जो कमिश्नर है, ERO भी है, उनको भी इन्फॉर्म किए। इस दरमियान पुलिस में भी इन्फॉर्म किए। ये 2 लोग उसमें अभी हाथ लगे हैं। वो हमारे कमिश्नर साहब से जो ERO है उनको हमारा डिमांड है कि इसकी बहुत डीप तक जाकर इंक्वायरी करें, क्योंकि इलेक्शन करीब है। ये लोग कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनकी इख्तियारी नहीं, इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी होता है BLO की ज़िम्मेदारी। एक कंप्लेंट आया सो है पीला हाई स्कूल, वन ऑफ द पोलिंग स्टेशन कई के बारे में बोले तो जो थर्ड पार्टी, जो प्राइवेट लोग आके पीला हाई स्कूल में जो पोलिंग स्टेशन में बैठ के जो लोगों के पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का, अलग अलग गाँवों का पोलिंग बूथों का वोटर लिस्ट है, उसके हिसाब से वो लोग एक 15-25 औरतों को बिठा के कुछ गड़बड़ चला रहा है बोल के हमारे को कंप्लेंट आया। तो हम खुद आके इधर इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे तो मालूम है क्या है बोले तो वो दोनों को ये लोग पकड़ लिए। वो लोगों को पूछे तो हम लोगों को क्या मालूम हुआ बोले तो ये जो है ना, ये लीटेक कुछ प्राइवेट कंपनी वाले ये लोगों को वेंडर दे दिए गए थे। ये लोग क्या सर्वे बोले तो एक आदमी को बोले तो एक आदमी अलग अलग बात बोले, मगर उसमें क्लैरिटी नहीं आया। मगर एक्चुअली जो है ना, जो प्राइवेट आदमियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ भी मुलाकात नहीं है, कुछ भी अथेंटिकेशन तो नहीं दिए। जो कुछ तो भी वोटर लिस्ट के बारे में है तो हमारा BLO गवर्नमेंट से अपॉइंट हुए, सो BLO रहता, उसके हिसाब से हम काम कर लेना। बस ये तो थर्ड पार्टी वाले हैं, अभी उसको हमारा रिटर्निंग अफसर के सामने पेश करने के वास्ते लेके खवातीन बच्चों की हिफाजत के साथ लॉ एंड ऑर्डर के तहत अमन शांति बरकरार रखी जाए। अवाम की खिदमत हिफाजत अहम मकसद। जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्य नारायणा का बयान। जिला पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सत्य नारायणा ने अपना ओहदा संभाला। इस मौके पर इन्होंने पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने कमिश्नरेट पहुंचते ही इन्हें सबसे पहले पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। अपना ओहदा संभालने के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले में अमन शांति को बरकरार रखते हुए बच्चों, खवातीन पर जुल्म करने वालों पर फोक्सो कानून के जरिए केसों को दर्ज करते हुए इन पर सख्ती से निपटा जाएगा। अब साइबर क्राइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, अवाम से अलर्ट रहने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक ACP नारायणा, SP, CI श्री सैलम, CIs दीगर भी मौजूद थे। మేజర్ క్రైమ్ అన్ని ఏరియాలో తగ్గింది, కానీ సైబర్ క్రైమ్ రకరకాలుగా
మనం ఈ డిజిటల్ వరల్డ్లో ఉండటం వల్ల చాలామంది అనేక రకాలుగా అనేక రూపాల్లో వాళ్ళు ప్రజలు మోసం చేసి వాళ్ళ డబ్బుని, వాళ్ళ పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని, శాస్త్రీని, ఆత్మగౌరవాన్ని ఇవన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు కొలగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాటి పట్ల చాలా అవగాహనతో, అప్రమత్తతతో ఉండాలి. సో ఆ విషయంలో మాత్రం చాలా సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సైబర్ క్రైమ్స్, మహిళల భద్రత, పోలీసుల కేసు, శాంతి భద్రతలో మాత్రం చాలా పగడ్బందీగా ప్రజలు సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటూ ప్రజలతో పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ద్వారా ప్రజలకి చాలా కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టి ప్రజల యొక్క ప్రొటెక్షన్ ప్రధాన ధ్యేయంగా ముందుకెళ్ళడం చెప్పట్లేదు. లేకపోతే లాస్ట్ వరకు ఈవెన్ అరెస్ట్ అయ్యే వరకు మనం ఆపడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. యాజ్ ఆఫ్ ఆ టైంకి ఎంతవరకు మన దగ్గర సమాచారం ఉందో ఎంతవరకు ఇవ్వగలుగుతాము, అది ప్రజలు కంప్లైంట్, సెక్యూరిటీ, ఇన్వెస్టిగేషన్, దర్యాప్తులో ఎటువంటి బంధం కలుపుకోకుండా ఎంతవరకు ఇవ్వగలమో అది నిరంతర ఫ్లో మాత్రం ఇవ్వగలరు. అది మాత్రం నేను ఆ గ్యారంటీ ఇస్తాను. మీరు మాకు ఇవ్వలేదు, మా ఎస్హెచ్ఓ గారు ఏం చెప్పలేదు అనే ఆ ప్రశ్న కాదు. మేము ఎంత ఇవ్వగలుగుతాము. मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम की शख्सियत खुद में एक अंजुमन थी। मरहूम ने पूरी हयात कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूद और मिल्लत की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देने में सर्फ की। मरहूम की खिदमत नाकाबिले फरामोश। ताज़ियती इजलास से शुरा के खिताबात। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम मौक़िर सियासत के एक नुमाइंदा सफ़ीर थे। इन्होंने अपनी जिंदगी फलसफे इंसानियत के लिए खिदमत के लिए बना लिया था। ज़हीरुद्दीन अली खान के इस मिशन को जारी व बरकरार रखा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने सेपहर सदाए उर्दू एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम मेमन फंक्शन हॉल अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक्किदा ताज़ियती इजलास से बात करते हुए किया, जिसकी सदारत मिर्जा अफजल बेग सदर सोसाइटी ने की। इस जलसे में मेहमानाने एजाजी की हैसियत से हाफिज लईक खान सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, ताहिर बिन हमदान नायब सदर पीसीसी, एम.ए. अजीज सदर रियासती मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना, सैयद नजीब अली एडवोकेट, अहमद अली खान सीनियर जर्नलिस्ट, मुफ्ती रफीक ने शिरकत की। डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशनल सोसाइटी निजामाबाद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। जलसे की कार्रवाई का आगाज सिद्दीकी वफा की तिलावत कलाम पाक से हुआ। मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल्ला ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। आमिर अली खान ने अपनी तकरीर में कहा कि मौक़िर सियासत की इशाअत दो करीबी साथियों जनाब आबिद अली खान और जनाब महबूब हुसैन जिगर ने सरकारी मुलाजमत को खैराबाद करते हुए 1947 ईस्वी में इसका आगाज किया। उस वक्त की मुल्क की आज़ादी के बाद मुसलमानों ने एक इस्तिराब आमेज कैफियत थी और रोजनामा सियासत में मुसलमानों को रहनुमाई का रास्ता बताया। आमिर अली खान ने मुल्क के मौजूदा हालात के तनासिर में कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दरमियान मुसलमानों की शिबी को बिगाड़ कर पेश किया जा रहा। इन्होंने कहा कि जब कभी मुसलमानों की माशी सूरत हाल मुस्तहकम हुई, एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत फसादात के जरिए इनकी माशियत को तबाह कर दिया गया। आमिर अली खान ने कहा कि ज़हीरुद्दीन अली खान दिल्लत मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और इसके जरिए मुत्तहिदा ताकत बनकर सियासी हालात का मुकाबला किए जाना इनकी ख्वाहिश थी और इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इस जद्दोजहद को जारी रखा। आमिर अली खान ने कहा कि इस्लाम मसावत का दर्स देता है और इस्लाम का बुनियादी फरीज़ा है कि गरीब और मुस्तहिक़ीन की मदद की जाए। इस्लाम में ज़कात का एक जामा निज़ाम मौजूद है जिसके जरिए मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि चंद एक अफराद के गलत लफ्ज़ लहजे की वजह से मुसलमानों को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि रोजनामा सियासत की जानिब से अदबी ट्रस्ट के जरिए मुशायरों का एहतमाम किया जाता था, ताहम आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज किया गया जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए। इन्होंने कहा है कि उर्दू जबान के फरोग के लिए जबान दानी प्रोग्राम को शुरू किया गया जिसके तहत 10 लाख अफराद को तरबियत दी गई और 40,000 अफराद मुलाजमतों से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं।
आमिर अली खान ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान मुसलमानों को सियासी तौर पर इनका सिर्फ इस्तेहसाल किया गया और वो पसमानदगी का शिकार होकर रह गए। इन्होंने कहा कि मिल्लत इस्लामिया को ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। मेहमानाने एजाज़ी हाफिज लई खान, ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद अब्दुल अजीज, सैयद नजीब अली एडवोकेट के अलावा शेख अली साबरी, सादुल्ला ने भी खिताब करते हुए ज़हीरुद्दीन अली खान की मिली, समाजी, सियासी, सहाफती खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मिर्जा अफजल बेग तेजान ने अपने खिताब में कहा कि रोजनामा सियासत एक तहरीक है और वह मुसलसिल समाज के तमाम तबकात के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दे रहा। इन्होंने ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। इस मौके पर मुख्तलिफ फलाही व वेलफेयर सोसाइटी के सूबेदारों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन, सहीफा निगारों में अशफाक अहमद खान, मोहम्मद जावेद अली, यूसुफ़ुद्दीन खान, मोहम्मद बलीग अहमद, अनवर खान, खालिद खान, मोहम्मद अमीरुद्दीन, जावेद अकरम, मसूद अहमद एजाज, इफ्तिखारुद्दीन NRI, मोहम्मद सिया, मोहम्मद मुसैब, अय्यूब, रफ़ीक कुरैशी, फयाजुद्दीन, एम रहीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिनके अगर खुद गर्जी का वादा है तो ये कहूँगा वोट नहीं बोलूँगा तो ये कहूँगा कि जब खुद गर्जी आ जाती है तो फिर उसमें परेशानी तो हम खुद गर्जी को छोड़ के इस चीज में लगे हुए थे। जब के सियासी लोग आगे बीच में उसमें अड़चन पैदा करना शुरू तो वहाँ पे रोकने की एक कोशिश हुई, लेकिन उस पर अलीम साहब ने ये कहा कि ये लोग तो आएंगे, इनका काम है रोकना है, लेकिन हमारा काम ये है वहाँ पर चलते रहना। ये सोच के हम आगे बढ़े। चुनाव से अब जो चीज हो रही है, अगर आप देखेंगे तो 10 लाख अब्दुल्लानी जबान बनानी है अभी गुज़िश्ता हफ्ते में कंप्लीट करें, उसमें 87,000 बच्चे थे तो 10 लाख के करीब अब तक उर्दू दानी जबान दानी इंशा से एग्जाम पास किया और तकरीबन 40,000 के करीब बच्चे आज हाईटेक सिटी में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आला ओहदे पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन हम बेसिक उनको ये बताना चाह रहे थे कि आप एंट्री लेवल का जॉब ले लीजिए। तो उस जमाने में 8,000 रुपए की तनख्वाह थी, आज वो 20,000 रुपए की तनख्वाह है। तो 20,000 से 2 लाख तक की लोग आज इनकम हासिल करें महीने को महीना तनख्वाह होने के लिए। तो ये चीज की अब गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 20 सालों में जो काम सियासत अखबार के जरिए हुआ, ये मैं समझता हूँ कि कोई सियासी लीडर ने इसे नहीं किया। बात यही पर आती है कि फिर खुदगर्जी लीडर को खुदगर्जी है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे वोट मिलना है, जिस तरह मैं शोहरत हासिल करूँ और वोट हासिल करूँ। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि हम हर कोई ये चीज मान लेंगे कि भाई मेरा वादा करीब है, या फिर मैं एक हदीस का हवाला दूंगा कि अगर आपका पड़ोसी आम नहीं खा सकता या कोई अच्छा खाना नहीं खा सकता तो आपको 40 घर छोड़ के उसके छीके या जो भी आप खाएं एक का हुक्म। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हम अपने बाजू वाले अगर बेहतर बनाने का सोच लेंगे तो ये सबसे बेहतर खिलाफ जो करता है। आला तालीमी ट्रेनिंग कैंप का RG डे और जिला DEO ने हाजिर होते हुए बताया कि इस कैंप से असातिज़ा को मुफीद होने से काफी सूदमंद साबित हो सकता है। तालीमी ओहदेदारान का बयान। जिला मुस्तकर के हरिचरण हिंदी विद्यालय में जारी तेलुगु ट्रेनिंग क्लासेस में DEO दुर्गा प्रसाद के हमरा RGD सत्यनारायण रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर RGD सत्यनारायण ने बात करते हुए बताया कि तलबा में जुबान के हिसाब से लिखना पढ़ना जरूरी है ताकि जुबान से बेहतर नताइज हासिल हो सके और ट्रेनिंग के जरिए मदद मिल सके। इस ट्रेनिंग से असातिज़ा को तदरीस में मुआविन साबित हो सके। असातिज़ा इन 3 दिनों की ट्रेनिंग क्लासेस से मुस्तफीज हो। जिला DEO दुर्गा प्रसाद ने बताया कि हर कोई इस ट्रेनिंग में जरूर हिस्सा लेते हुए वक्त पर हाजिर होकर इस मौके से मुस्तफीद होते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करें। इस प्रोग्राम में कोर्स डायरेक्टर्स P श्रीनिवास राव दीगर भी मौजूद थे। RTC मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, DA की इजराई का ऐलान। तेलंगाना के RTC मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपने मुलाजमीन के लिए एक और मरहले के DA का ऐलान किया है।
जारिया साल जनवरी से दिया जाने वाला 5% DA मंजूर करने का ऐलान किया गया है। माह सितंबर की तनख्वाह के साथ DA मुलाजमीन को अदा किया जाएगा। TSRTC के सदर नशीन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि ताहाल 8 DA मंजूर किए गए। इन्होंने कहा कि बकाया जात अनखरीब अदा करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में BRS तीसरी मर्तबा पूरी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करते हुए सरकार बनाएंगे। KCR का CM तीसरी मर्तबा बनना यकीन। तेलंगाना में BJP का कोई वजूद नहीं। MLC के कविता का बयान। तेलंगाना के हुक्मरान जमात BRS के रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में BJP कहीं नहीं है और इनके वालिद के चंद्रशेखर राव का तीसरी बार वज़ीर आला बनना यकीनी है। इन्होंने हैदराबाद में अपनी रिहाइश गाह पर जगतियाल जिले के BRS लीडरों और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जब जगतियाल जिले पर BRS का झंडा लहरा रहा था तो इन्हें बहुत खुशी हुई थी। इन्होंने इस मर्तबा भी पार्टी के रुकने असेंबली संजय कुमार की कामयाबी को यकीनी बनाने कारकुनों पर जोर देते हुए कहा कि संजय ने कोरोना के दौरान खुसूसी खिदमत अंजाम दी थी, जिसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि MLA संजय कुमार यकीनी तौर पर एक बार फिर शानदार अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। जोश, अकीदत व एहतराम के साथ बोधन दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह के उर्स का एहतमाम, कसीर तादाद में ज़ायरीन की शिरकत। दुनिया में निकलता नहीं ऐसा कहीं संदर, राजा हो के प्रजा हो सभी चलते हैं पैदल। ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सरकार के संदल की बड़ी धूम मची है, अल्लाह के महबूब की बारात चली है। सब झूम के गाते हैं अकीदत के तराने, दीवाने लुटाते हैं मोहब्बत के खजाने, मोहब्बत के खजाने, मोहब्बत के खजाने। अल्लाह की रहमत के बरसने लगे बादल। चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सामाइन हजरात, जे सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समात फरमाइए। ये चांदनी ये घोड़े ये पत्ती की सवारी, खुशबू में नहाई हुई रुत है बड़ी प्यारी। जब बजते हैं शहनाई का क्या खूब समा है, ऐसा हंसी मंजर कोई बतलाए कहाँ है, बतलाए कहाँ है, बतलाए कहाँ है। जिस शान से निकला है मेरे ताज का संदल। चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे। मांगते हैं खड़े तेरे दर पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, मांगते हैं खड़े तेरे दर पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। हो जाए करम की एक नजर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन।
हसन मांगते हैं खड़े तेरे दर पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी ये मुझको यकीन कामिल है। बन जाएगी बिगड़ी आज मेरी ये मुझको यकीन कामिल है। बस देख लो मुझको एक नजर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। मांगते हैं खड़े तेरे दर पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। ये दिल में तमन्ना लेकर मैं रोज़े पे तुम्हारे आया हूँ। ये दिल में तमन्ना लेकर मैं रोज़े पे तुम्हारे आया हूँ। एक रोज चले आना घर पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। मांगते हैं खड़े तेरे दर पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। इस सर को झुका पाए दुश्मन ये उसके बस की बात नहीं। इस सर को झुका पाए दुश्मन ये उसके बस की बात नहीं। जिस पर ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सरपंचों की जानिब से एक तरफा फैसला लेते हुए अवाम को गुमराह करने वालों पर कानूनी तौर पर एक्शन लिए जाने के लिए कांग्रेस कायदीन की जानिब से जिला इलेक्शन अहदेदारान को मेमोरेंडम पेश किया गया। कामारेड्डी जिला रामारेड्डी मंडल कांग्रेस फ्लोर लीडर मंडल जेडपीटीसी एन मोहन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज के बालराजू की क़ियादत में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इन्हें एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में हैदराबाद इलेक्शन कमिश्नर और जिला इलेक्शन अहदेदार को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें बताया गया कि गाँव में एक तरफा रिजर्वेशन का मतलब सरपंच नायब सरपंच अपनी मर्जी के मुताबिक अवाम की इजाजत के बगैर एक तरफा तौर पर दस्तखत करने वालों पर कानूनी तौर से इन पर एक्शन लिए जाने का मुतालबा किया। अवाम की इजाजत के बगैर सरपंचेस दस्तखत के जरिए एक तरफा फैसला लिया जाना सरासर गलत है, जिस पर सरकारी अहदेदार कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाना जरूरी है। सरपंचों के साथ ऐसा ही एक तरफा फैसला लेने वाले एमपीपीस पर भी एक्शन लिया जाना जरूरी है। ऐसी हरकत करने पर मीडिया वाले अवाम के दरमियान पहुंचने पर सच्चाई का इंकशाफ होने लगता है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुन भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज तस्दीक के साथ साथ एक खानदान के तमाम वोटर्स के नामों को एक ही बूथ पर दर्ज करें, जिला कलेक्टर की हिदायत। गैर सरकारी मशकूक अफराद के ग्रुप की वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के ताल्लुक अवाम से पूछताछ। एमआईएम कायदीन ने दी पुलिस व म्यूनिसिपल कमिश्नर को इत्तला। मुकम्मल तहकीकात व जांच का मुतालबा। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद की हैसियत से सत्य नारायण ने लिया ओहदे का जायजा, दी गई सलामी। अमनो जब्त व शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पुलिस तैयार, सीपी निजामाबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।